اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ قال الملأ کہا سرداروں نے کہا سرداروں نے من قومہ من قومه آپ کی قوم کے آپ کی قوم کے کہا ان کی قوم کے کہا ان کی قوم کے سرداروں نے سرداروں نے انا انا لنراک لنراک بے شک ہم آپ کو بے شک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں فی ضلال مبین فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں کھلی گمراہی میں کہا ان کی قوم کے ان کی قوم کے سرداروں نے سرداروں کہ نے ہم آپ کو ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں قال یا قوم قال یا قوم انہوں نے کہا انہوں نے کہا اے میری قوم اے میری قوم لیس بی ضلالہ لیس بی ضلالہ لیس بی ضلالہ لیس بی ضلالہ مجھ میں مجھ میں کسی قسم کی کسی قسم کی برائی نہیں برائی نہیں ولیکنی ولیکنی لیکن میں یقیناً یقیناً رسول رسول ہوں رسول من رب العالمین رب العالمین اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین کی طرف سے انہوں نے کہا انہوں نے کہا اے میری قوم اے میری قوم مجھ میں مجھ میں کسی قسم کی برائی نہیں کسی قسم کی برائی نہیں لیکن میں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے رسول ہوں رسول ہوں. تو یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 60 اور 61. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، استقامت کے ساتھ اسی رستے پہ ڈٹے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کی روشن آیات سے اللہ تعالی ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. جو ہم نے پرسوں آیت پڑھی تھی اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اور آپ کے حالات و واقعات کا ذکر اللہ رب العالمین نے شروع فرمایا. آج کی آیات بھی اسی ضمن میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے اپنی قوم سے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا ذرا تسلی سے سنیے گا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. کیا کرو؟ اللہ کی عبادت. یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو. کس لیے؟ کیونکہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے اس رب کی عبادت کرو. اچھا جی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو، اسی طرح شرک کرتے رہو، بتوں کی پوجا کرتے رہو، تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا تم پر خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر بڑا عذاب نازل نہ کر دے. اچھا، یہ ایک ان کے بھلے کے لیے بات تھی. توجہ ہے؟ یہ کیا تھی؟ ان کے بھلے کی بات تھی کہ پیغمبر ان کو مشرکانہ عقائد سے روک کر توحید کے رستے پر چلانا چاہتے تھے. اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے جو تبلیغ کی گئی تھی، اللہ کی طرف سے جو احکام دیے گئے تھے، وہ ان کو بتا کر ایک رب کے سامنے جھکنے کا کہہ رہے تھے. بس جب آپ نے یہ پیغام لوگوں کو دیا تو آپ کی قوم کی طرف سے جو جواب آیا، اس جواب سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھیے کہ وہ شخصیتیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں تمام مخلوقات میں سے جیسے اشرف انسان کو بنایا ہے نا، ایسے ہی سارے انسانوں میں جو افضل ترین جماعت ہے وہ جماعت انبیاء علیہم السلام کی ہے، وہ اللہ کے رسولوں کی جماعت ہے. اور ان اللہ کے رسولوں کو جواب کیسے دیے گئے ہیں سنیے. کہا قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. جب اللہ کے پیغمبر نے کہا نا کہ ایک خدا کو مانو، اس کی عبادت کرو، تو قوم کہنے لگی اے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح، ہم دیکھ رہے ہیں اس بات کو، ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم تو ہدایت پہ ہیں اور آپ گمراہ ہو گئے ہیں، آپ کھلی گمراہی کے اندر ہیں. اور اگر اسی طرح سورہ ہود کی آیات کو ہم دیکھیں
सूरह हूद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इनका कौल नकल किया है, जो उनके सरदारों ने कहा था, क़ाल या कौम लैसा बी सफ़ाहतुम, इस तरह की आयात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करते हुए फरमाया कि आपकी कौम ने आपको यहाँ तक कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, हम आपको देख रहे हैं कि आप खुली गुमराही के अंदर हैं। आपकी पैरवी करने वाले, आपको मानने वाले, आपकी इत्तिबा करने वाले जो लोग हैं, वो कौम के जलील तरीन लोग वो हैं जो आपके साथ लगे हुए हैं। अगर आपके दीन में कोई हिदायत होती, आपके दीन में कोई अच्छी बात होती, तो आपके साथ ये कौम के जलील और गरीब लोग न होते, बल्कि अल्लाह ताला जो है वो हमें हिदायत देता। तो उन्होंने इस तरह करके अल्लाह के पैगम्बरों को पागल कहा कि आप पागल हैं, माज़अल्लाह, आप दीवाने हैं। आप इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर नहीं, बल्कि जितने भी पैगम्बर आए हैं सब पैगम्बरों की इस तरह से मुखालफत की गई, और उनको न सिर्फ ज़ुबान से अज़ियत दी गई, बल्कि हाथों के साथ जितना उनसे हो सकता था उन्होंने अल्लाह के पैगम्बरों को अज़ियत देने की लाख कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब कौम ने ये कहा, कौम के सरदारों ने ये कहा कि हम आपको खुली गुमराही में देख रहे हैं, कौम के सरदारों ने ये कहा कि आपके साथ तो अर्ज़ल अरादिलुना के लफ्ज़ हैं कुरान के अंदर, कि आपके साथ वो कौम के अर्ज़ल लोग, कमीने लोग हैं, माज़अल्लाह, जलील लोग हैं। सरदार जो मुशरिक थे, जो अल्लाह को ना मानने वाले थे, बदतरीन लोग थे। अब वो बदतरीन लोग अल्लाह के पैगंबर के साथ चलने वाले, अल्लाह के पैगंबर के हज़रत नूह के असहाब को जलील कह रहे हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है ना कि जलील वो नहीं होता जिसको लोग जलील कहें। जलील तो वो होता है ना कि जो अल्लाह की हिदायत को ना मानता हो। जलील और कमीना अर्जल किस्म का बंदा तो वो होता है ना जो जाहिल हो, जो सब कुछ देखने के बावजूद, अंबिया की तबलीग सुनने के बावजूद, अल्लाह के रसूलों पर नाजिल होने वाली किताब को सुनने के बावजूद, फिर भी वो अल्लाह के रसूलों को, उनके असहाब को माज़अल्लाह इस तरह के बुरे अलकाब से याद करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात पसंद नहीं है। हालांकि दर हकीकत देखा जाए तो कौम के सरदार बदतरीन काफिर, ढीठ तरीन काफिर खुद थे, और अपना कुफ्र और अपनी जहालत वो दूसरे लोगों पे थोपते थे जो अल्लाह को मानने वाले थे। अल्लाह के पैगंबर ने इतनी बात होने के बावजूद भी गुस्सा नहीं किया। बात की समझ आ रही? अल्लाह के पैगंबरों ने फिर भी ऐसी बातों में गुस्सा नहीं किया। जवाब क्या दिया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल या कौम, ऐ मेरी कौम, लैसा बी दलाला, मैं गुमराह नहीं हूँ, मुझ में कोई बुराई नहीं है। जैसे तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर बुराई है, तुम गुमराह हो चुके हो, तुम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ चुके हो, तुमने अपने बाप दादा की रस्मों को तर्क कर दिया, नया दीन लेकर आए हो। इस तरह की जो बातें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को की गई, बदले में आपने यही कहा, मेरी कौम, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मैं गुमराह नहीं हूँ। मैं खुद से अपने मुंह से ये बातें नहीं कर रहा हूँ कि मैं खुद से अपने आप उठकर आ गया हूँ और आपके सामने खड़े हो के मैं कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे मानो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरा कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे हाथ पे बैत करो, शिर्क छोड़ दो। ये सारी की सारी बातें मेरे मुंह की बातें नहीं है, ये सारी की सारी बातें मेरे घर की बातें नहीं है, ये सारी की सारी बातें मेरे शौक से नहीं है, ये सारी की सारी बातें मेरी राय से, मेरे जहन से, मेरे दिमाग से नहीं है। ये सारी बातें हैं किस लिए कर रहा हूँ? इसलिए वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सारी कायनात को पालने वाला है, उस आलमीन के रब ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। उस आलमीन के रब ने मुझे हुक्म दिया है कि जाकर लोगों को तौहीद की दावत दो, जाकर लोगों को बुतों की पूजा से रोको, जाकर लोगों को बताओ कि हकीकी शरीयत क्या है, हकीकी तौहीद क्या है, हकीकत में तौहीद क्या है। वो ये है, अल्लाह के पैगंबरों को ये सबक पढ़ाया गया कि लोगों को बताओ कि जगह जगह जाकर किसी के सामने झुकना, तरह तरह के लोगों के सामने झुकना, मुख्तलिफ दरवाज़ों पर जाके झुकना, ये तौहीद नहीं है। तौहीद तो ये है कि ज़ुबान से जब बंदा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अमलन भी इस बात का ये सबूत दे कि जैसे मैंने कहा कि कोई भी ऐसा कोई भी इस कायनात के अंदर नहीं है जो इबादत के लायक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो इबादत के लायक है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। जब ये ज़ुबान से कहा है तो फिर हमारा अमल भी इसी के मुताबिक होना चाहिए। हम
जुबान से कहें नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और झुके भी एक रब को, तो ये हमारी कौल और फेल, हमारा कौल और हमारा फेल दोनों एक जैसे होंगे। और अगर हम जुबान से कहें अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कभी किसी के आगे झुके हों और फिर कभी किसी के आगे झुके हों, कभी किसी के आगे झुके हों, तो जुबान ने जो कहा उस पर अमल हमारा ना हुआ, तो इसको कहते हैं कौल और फेल में तजाद। तो ये मुनाफकत है, अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद नहीं। यही बात अल्लाह के पैगम्बर हज़रत नूह ने फरमाया कि ये मेरी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का मुझे हुक्म आया है, उसने ही मुझे भेजा है, उसने ही मुझे रसूल बनाया है, उसने ही मुझे ये सारी तालीमात सिखाई हैं ताकि मैं तुम्हें जाके ये सब कुछ बताऊं। मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ पैगम्बर हूँ। अब तुम मेरे बारे में जो मर्जी बातें कहो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पैगम्बराना जो तर्ज अमल है उसे अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।